सर आपका माइक ऑफ है सर। Oh, sorry. So once again I have to repeat. Okay, so this is the structure of your silicon material. One section, okay, small section, and this is the 3D view. Okay, so what we have discussed before, this was only अटेंडेंस मार्क करना है। yes, you have to mark the attendance for this class also, but let us first do the class. Okay, mark कर लेना बीच में जब बोलेंगे. So what we are have gone through right now for one atom. Okay, but we are talking about the whole structure. So how these atoms are arranged in the structure. Okay, so how this is arranged is like this. Okay, because for one silicon we have 4 valence shell electron. Okay, now for second silicon atom we are having another. Now these have to make a covalent bond, okay, with nearer silicon atom, तभी तो एक structure form में आएगा, है ना? तो this is how your silicon is arranged. ये एक silicon atom है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना? इसके 4 valence shell electrons. Now they are making a covalent bond with the nearer atom, okay. उसके जो 4 है उसके साथ आजू बाजू में सारा ये covalent bond बनाएंगे, okay, and this is repeated in whole structure. यही जो पैटर्न है वो whole structure में repeat होता है, इसीलिए सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल टाइप का. What is crystal? If atom are arranged in any material in periodic fashion or the same fashion, that a structure is called as a crystal. Clear है सबको? ठीक है? For the representation in our copy and book, we are following this type of notation. Okay, ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? ये बाजू वाला सिलिकॉन एटम है, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका. क्लियर है? ये आप कितना भी तक दिखा सकते हो, 100 सिलिकॉन एटम बना के दिखा सकते हो या सिर्फ 4 ही बना के दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू. क्लियर है? यस सर. और या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना? सेम सिलिकॉन एटम है, इसके 4, है ना, कोवैलेंट, उसके बाजू वाले के 4, और ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन से भी आप दिखा सकते हो. ओके, क्लियर? Now for the other generally for the pure semiconductor, okay, if you talk about diamond, silicon, germanium, है ना, great tin, black phosphorus, these are the semiconductor materials की properties है. हम लोग इसके बारे में ज्यादा concern. Okay. Silicon, तो valence shell we have 4, then electrical conductivity we have 4.3 into 10 to the power 6, and energy band gap, ये वाला जो band gap था, है ना, वैलेंस और कंडक्शन बैंड का, वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट. ओके, क्लियर है? दैट मींस दिस स्ट्रक्चर वी आर टॉकिंग. एंड दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग. ये अगर आपको आ रहा है तो ये मॉड्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये समझ में आना चाहिए, ठीक, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Okay, so what is valence band? These are the definition you must know, but do you understand what is the electron valence band and what is the conduction band and what is this
energy band gap is called. Okay, so valence band is the what? Is the highest range of electron energies in which electrons are normally present at absolute zero temperature. Okay, so this is called as the valence band. What is the conduction band? So it's the lowest range of vacant electronic states. Okay, क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड में अगर कोई चीज प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सपोज, इसके बाद भी आप एनर्जी दोगे तो ये वैक्यूम में चला जाए, इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर निकल जाए, ओके, इजेक्ट कर जाएगा, ठीक है. सो इट्स व्हाट? इट्स अ लोवेस्ट एनर्जी रेंज फॉर द वैकेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. ओके, clear? Or you can say like that, it's an energy range where free electron is present, is called as conduction band. Clear hai? What is forbidden energy band gap? What is the definition you can write? The separation between the valence band and the conduction band is known as forbidden energy band. Okay, and finding of electron in this energy level is half, 1/2 probability. Okay, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा नहीं तो यहाँ रहेगा. इस एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने का या इलेक्ट्रॉन पाने का, है ना, प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ. इट्स लाइक टॉसिंग ए कॉइन. अगर आप कॉइन को उछालते हो तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ नहीं आए? ओके, कितना प्रोबेबिलिटी है जी कि कुछ ना है, ना हेड आए ना टेल आए? 0. ऑब्वियसली देयर इज ए प्रोबेबिलिटी. अगर वो खड़ा रह गया तो आप उसको नकार नहीं सकते. यू हैव टू कंसीडर दैट केस आल्सो. ओके, ऐसे गिरा और सिक्का खड़ा रहेगा, है ना, ना हेड ना टेल. That probability is called as half. Okay, so finding of electron in these forbidden gap energy is half. Okay, probability of finding of electron in these area is very less. Now types of semiconductor. First of all we have gone through the semiconductor. Now types. इसमें भी type है. Okay, extrinsic one and intrinsic one. Okay, so two types we have. First one is called as intrinsic semiconductor and second one is called as extrinsic semiconductor. These semiconductors are pure one, means we are not having any other material in these categories. Okay, and these extrinsic semiconductor is made up with the silicon after doping something. इसमें हम कुछ मिक्स करते हैं, उसके बाद ये एक मटेरियल फॉर्म होगा, उसको हम क्या, उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. ओके, क्लियर है? Yes, sir. So a semiconductor which is in its extremely pure form is known as intrinsic semiconductor. Okay, so normally silicon and germanium are the most widely used intrinsic semiconductors. Okay, simply आप अगर germanium लोगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आएगा. ओके, या सिलिकॉन लोगे तो वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आएगा. ठीक है, so basically this is tetravalent because 4 electrons इसके आउटर मोस्ट सेल में होगा, वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं हम लोग. Again, this is the structure of the silicon material, है ना. Each atom is having
4 electron is in its outer shell and they are making covalent bond with nearer atom. Okay, like this. Okay, ये represent करने का तरीका है. जब आप कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे then you have to make like that. See again how this is happening and what is the behavior of this atom at a very low temperature, or some, if we give some temperature in this, what is happening. Okay, so these are the 4 electron what we are talking about, are the pure semiconductor or intrinsic semiconductors. Okay, and they will make a covalent bond. See carefully. Okay, so these are the covalent bond they have made, right? So if you give the heat, what will happen? This covalent bond is going to break. Okay, ये covalent bond break कर जाएगा. ये break करने से heat means what? We are giving some extra energy. So obviously these electrons will experience extra energy. So now energy is extra on that label. So they will move to another label, and that is what we are calling as is going to be free. ये bond टूट जाएगा मतलब क्या? ये atom से अब जुड़ा हुआ नहीं है, अभी ये free हो गया, है ना? So they will free. Okay, ये free हो जाएगा, ये भी free हो जाएगा. इस काइंड ऑफ जो यहाँ से, जब ये यहाँ से फ्री होगा, यहाँ से फ्री होके मूव करेगा, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी. किसकी? ऑब्वियसली इस एटम के पास एक वैकेंसी है, और ये नेचर क्या है इस वैकेंसी का? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल हैव नेगेटिव चार्ज, इट इज गोइंग टू हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, बिकॉज यहाँ पे एक वैकेंसी है जिसको हम होल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? होल. ओके, एंड डिनोट करेंगे स्मॉल h से, एंड इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव. ओके, ये बाजू वाला इसको फील कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है ना? या कोई और फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आएगा और ये अट्रैक्ट कर लेगा तो ये फील हो जाएगा. ओके, अगेन इज गोइंग टू हैव द बॉन्ड. दैट मींस कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से अगर लोअर एनर्जी पे आता है तो ये इसको फील कर सकता है. दैट मींस एट द नॉर्मल टेम्परेचर विल हैव सम breaking in the covalent bond due to the temperature. Extra energy is going to be observed with these any of the electron present in the system, and it is going to break the bond. You'll have some free electron into the system like this. If we talk about on the energy label diagram, then you'll have the conduction band, you'll have the valence band, we'll have the valence band, and we'll have the conduction band, and the separation between these two will have how much electron volt? 1.1 electron volt, and this is called as forbidden energy gap for the silicon, right? अब यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वैलेंस बैंड वाले जितने भी आप देख रहे हो, अगर एनर्जी बैंड डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करे तो ओके, तो अभी यहाँ पे एनर्जी आएगा तो क्या होगा? ये ब्रेक करके ये जो वैलेंस बैंड में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, दे विल जंप टू द कंडक्शन बैंड. अब ये रेंज है, ये कहीं पे भी रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और बहुत ज्यादा दे दोगे तो ये मटेरियल से बाहर भी निकल सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मच एनर्जी वी आर गिविंग. ओके, अगर ये यहाँ पे है तो इसको यहाँ से यहाँ जाने हो सकता है ज्यादा एनर्जी लगे, क्योंकि यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करने में ज्यादा ही लगेगा. बट अगर एज पे है तो इसको कितना लगेगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so see, this is what I am talking about. Okay, we provide some heat and electrons from here will move to this level or the conduction band. It will go to the conduction band, or on in the valence band there is a vacancy of okay, and this is called as
होल्स. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला गया. अभी इस लेवल पे एक वैकेंसी है, दैट void section or vacancy is called as holes, and it has some positive charge on it. Okay, अभी क्या होगा, अगर सपोज इसमें इतना स्ट्रेंथ है पॉजिटिव चार्ज में, तो क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज्ड. ओके, तो ये क्या होगा, फिल हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर गया, यहां से यहां, वैकेंसी अभी फिर से यहां क्रिएट होगी. तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया और होल का पोजीशन इधर से इधर हुआ. मतलब आप बोल सकते हो होल भी ट्रेवल कर रहा है. फिर यहां से यहां भी हो सकता है ना. सपोज ये फिल इसको कर दिया तो अभी वैकेंसी यहां क्रिएट हो गई. तो एट बिगिनिंग होल वाज हियर, नाउ इज हियर. सो इट्स मूव फ्रॉम, physically it's not moving, but on the picture here, on the condition what we are looking on, this you will find this position of this hole is moving. Okay, so due to this there is also flow of current into the system, and because electron is also moving, so due to this there is also flow of current. So total flow of current into the system is due to holes plus electrons. So this is very little thing that you have to understand. It's different from the conductor. Okay, it's very very different from the conductor. In conductor what we are having, only electron is responsible for having a current, but in semiconductor there is two component, one is called as electron and second one is called as holes. Okay, that means the charge carrier in this system or in the semiconductor is having two, one is electron and one is holes. Obviously how much amount of current is depending upon what, how many these charges are available into the system, how many free charges are available into this system, either holes or electrons. Am I clear? किसी को दिक्कत? बोलो. Any problem? No, sir. No, sir. Any question? No, sir. Okay, सबको समझ आ गया? Next. So these are the what notation what we have on, you have to go through that. These are the free electrons present in the systems, what we are calling it, the event is happening into the system. Okay, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ और यहाँ जो सिस्टम में है. ये वाला जो ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एंड दीज आर द होल्स. ओके, so in intrinsic semiconductor the number of thermally generated electrons is always equals to the hole, right? It's very very simple. In intrinsic semiconductor what is the number of electronically, means the heating, what the electron generated due to the thermally heated, okay, is always equal. जितना number of electron free होगा उतना ही holes बनेगा. Okay, clear है? तो in intrinsic semiconductor Ni is going to be equals to Pi. Okay, मतलब hole is equals to the number of free electron. जितना number of free electron रहेगा उतने ही hole रहेगा.
क्लियर है? ओके, अभी देखिए आप लोगों ने जितना फ्री होगा उतना ही होल्स क्रिएट हो सकता है। अगर हम हीट करेंगे मतलब नंबर ऑफ free electron present in the system due to the heating, due to the thermal energy is going to be equal to the number of holes. Okay, ठीक है। So these is what हम नंबर को क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को उसके नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन। कहीं पे भी हम बात करेंगे मतलब कंसंट्रेशन। ओके, क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन कितना है 5 10 15 20 है ना। जब हम नंबर के बारे में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन। ओके, दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ free electrons or hole is going to be referred as the carrier concentration. And now if we talk about intrinsic तो वो intrinsic carrier concentration हो जाएगा। और then if we talk about extrinsic, क्योंकि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप का है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो अगर हम इंट्रिंसिक के बारे में बात करेंगे तो इंट्रिंसिक में बात हो सिंपल सा है, एक मटेरियल है सपोज मान ले लेते हैं। ओके, अभी इसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना होल्स आया, कितना क्या बना, उसको दिखने के लिए या उसको समझने के लिए हम एक नोटेशन देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम Ni से डिनोट कर रहे हैं। आई क्यों? क्योंकि ये इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए। ओके, तो नंबर होल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल p, और ये कौन सा सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो होल्स वाला भी, वो भी इंट्रिंसिक वाला, है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय स्मॉल p सफिक्स i। ओके, क्लियर है? सो दैट कि हमको इस पे एनालिसिस करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या देखने का है इसमें? दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड the very basic thing is that we are now focusing on the properties of the your semiconductor material. So we are looking inside the material. Now inside में क्या है हमारे पास? Obviously इलेक्ट्रॉन ही होगा, है ना। तो जब आप उसको एनर्जी दोगे तो वो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है वो डिपेंड कर रहा है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पे। अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा नंबर में रहेगा उतना अच्छा करंट फ्लो होगा, अगर कम होगा तो कम फ्लो होगा। अभी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने और घटने का क्या क्या प्रोसेस है, कब ये बढ़ सकता है कब ये घट सकता है, जस्ट हमको वो देखना है। एंड देन यू हैव टू डेवलप सम इक्वेशंस, है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन, सो दैट वी कैन रिलेट कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा घटेगा क्या क्या हो रहा है, उससे हमारे ओवरऑल करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? देन विल मेक सम डिवाइसेस यूजिंग दिस मटेरियल एंड उस पे अगर आप वोल्टेज या करंट दोगे तो कैसा बिहेवियर है। ओके, दैट इज द गोल ऑफ दिस मॉडल। क्लियर है यहां तक सभी को? चुप हो जाते तुम लोग। Okay. So this is the simple pure semiconductor material. Okay. जब आप इस पे बाहर से वोल्टेज सप्लाई कर दोगे तो क्या होगा?
what will happen if you apply some potential or battery? If we join, then what will happen? ऐसा कनेक्ट कर दोगे नेगेटिव और पॉजिटिव से तो क्या होगा? Obviously this is positive potential, so electron nearby this is going to be attracted towards this, एक्स्ट्रा एनर्जी इधर पुल करेगा इसको, तो ये ब्रेक हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, व्हाट विल हैपन? दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर विल बी अ, ये अगर फ्री होगा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट हो जाएगा, है ना? फिर ये इसके नियरर को फील करेगा, फिर वो उसको फील करेगा, ऐसे करके होल्स विल हैव द फ्लो इन दिस डायरेक्शन and electron will have the flow in this direction. Okay, and then will be a flowing of current will start. Okay, flow of current will start because electron is moving in this direction, so current will flow in this direction, overall current. Clear hai? So these are the whole concentrations. This is the whole concentration. Okay, and these are the electrons concentration. सपोज इस सिस्टम में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है और 5 होल्स है. ओके, तो अब मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना है इस सिस्टम में, तो यू हैव टू से 5 ऑब्वियसली, एंड होल कंसंट्रेशन इज व्हाट? आल्सो 5. ओके, क्लियर है? सो दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. And now if you apply some potential on a pure semiconductor material, this phenomena is going to be happen inside. Clear? जो आपको दिखेगा नहीं, but atomic level पे ये हो रहा है inside. ठीक है? So this is the diagram for under the electric field. If you apply some potential or electric field, your intrinsic semiconductor is going to behave like this inside. Okay, means there will be a flow of current. Okay, obviously you have to apply more than 1.1 electron volt, then this phenomena will happen, because to having free electron, this energy barrier should break. Okay, then there will be a flow of current in the system. Now what is the need of, yeah, अभी जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था हमारे पास, then what we have observed कि हमारा सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सिस्टम में. वो फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? हम ऐसा कुछ करें जिससे ऑलरेडी सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन रहे. यू डोंट हैव टू सप्लाई बाहर से हम देके उसको फ्री करें. कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में हमको एनर्जी लगेगा ना, तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? बोलो जी, सब सो गया? सपोज एक मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप क्या करो? वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा. कोई नहीं बोल रहा कुछ.
फरहान, कृतिका, नीरज, साधना, कोई नहीं, विष्णु, विक्रांत, विकास, सब गायब हो गया। सर है सर। Tell me what you will do if you want to increase the concentration of free electron into the system. कैसे करेंगे? एक तो था एनर्जी देकर हम कर रहे थे, बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। और क्या टेक्निक है? What you have to do? सर जो सपोज आपके पास चावल है, सर अधिक सपोज आपके पास घर में चावल, अधिक इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को प्रेशर इंक्रीज करके क्या करेंगे सर? प्रेशर अधिक इंक्रीज इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को मिक्स कर देंगे सर। तो देखो हमेशा ये पॉसिबल नहीं ना कि आप प्रेशर इंक्रीज करके उसको ये चीज करोगे, है ना? कर तो देंगे बट हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। मतलब आप एक हर बार आपको एक्स्ट्रा प्रेशर उसको देना होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। हमको कुछ कंक्रीट चाहिए। सर हम अधिक इलेक्ट्रॉन को वाला मतलब मटेरियल को मिक्स कर देंगे सर, उसके साथ जो इसमें कम है कंसंट्रेशन बढ़ ऑब्वियसली हैव टू मिक्स, है ना? ऑब्वियसली ये सॉलिड है ना, सॉलिड में मिक्स करना है तो आपको लिक्विड रहता तो आप फटाक से मिक्स कर देते। ओके, गैस रहता तब भी मिक्स हो जाता बहुत आसानी से, बट इट्स ए सॉलिड। ओके, ऑब्वियसली वी आर मिक्सिंग विथ सम मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। अगर आपको किसी चीज में जैसे आपको एनर्जी बढ़ाने का है तो आप क्या करते हो? अगर जिम में जाते हो तो दवा लेते हो, दवा इन द कहने का मतलब एस्ट्रॉइड लेते हो, है ना? जिससे क्या होगा, आप थकते नहीं। तो आप थकेगे नहीं तो ज्यादा पुश अप, ज्यादा पुल अप ये सब करोगे। ओके, आप देखते हो बहुत सारे एथलीट जो एथलीट्स है वो डोपिंग केस में फंस जाता है और फिर जा नहीं पाता। मीन्स व्हाट, दे हैव इंजेक्टेड एक्सटर्नली समथिंग, है ना? जो नॉर्मली जैसा था उसका बिहेवियर और उसके स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है। ओके, सेम थिंग इज if you relate these two, then doping is a process, है ना, of adding impurity into the pure semiconductor material. हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सपोज ये सिलिकॉन। ओके, इसको हम अगर कोई दूसरा मटेरियल से इसको इंटरैक्ट करवाते हैं और इसमें डोप करते, मतलब इसमें मिक्स करते, ओके, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। ओके, इनटू द सेमीकंडक्टर फील्ड। So what is doping? Adding impurity into the pure semiconductor material is called as doping. Doping क्या है? बोलो तुम लोग एक बार। Sir, adding impurities in the semiconductor material. Pure semiconductor material. Because Yes, sir, to make semiconductor material is having two types, pure one and extrinsic one. Okay. Okay. So doping is the process of deliberately adding a very small amount of impurity into an intrinsic semiconductor, means into a pure semiconductor material. Okay, that process is called as doping. अभी डोपिंग अगर हम करते हैं तो हमको ये केयरफुली चूज करना पड़ेगा कि हम क्या डोपिंग कर रहे हैं, है ना? बिकॉज हम अपने मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बिगाड़ना चाहते। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं घी में आपको कुछ मिक्स करना है तो आप तेल ये वो कुछ भी मिक्स करते। आवर टारगेट इज टू इंक्रीज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स
at normal condition. Right now at the for the semiconductor material we don't have any such free electron that is going to take part in the conduction, pure one वाला में कुछ अगर आप हीट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 1, 2 या 10 इलेक्ट्रॉन से फ्री हो जाएगा, अगर हो पाता है तो होगा, बट वो भी नहीं होगा। हमको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जब तक नहीं देंगे तब तक वो फ्री नहीं होगा, मतलब तब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में जाएगा नहीं, फ्री होगा नहीं। So right now what we are doing, we are deliberately doping some small amount of impurity into this intrinsic semiconductor material so that at the normal condition we have some free electron for the conduction. Okay, so how this is achieved now we'll see. सर इम्प्योरिटी मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? इम्प्यूरिटी मतलब पहले सिलिकॉन था, अभी कुछ और एक मटेरियल से ऐड कर रहे हैं, वही इम्प्यूरिटी। तो मतलब कोई भी अलग चीज कुछ भी ऐड करेंगे वो इम्प्योरिटी हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए इम्प्यूरिटी। ठीक है सर। तो द इम्प्यूरिटी एटम्स, जो मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, डोपेंट्स, क्योंकि हम उससे डोप करने वाले, मतलब उसको मिक्स करने वाले। ओके, द इम्प्यूरिटी एटम्स आर कॉल्ड एज डोपेंट्स। ओके, so the semiconductor material is containing impurity is known as extrinsic semiconductor. Okay, प्योर वन वाले को इंट्रिंसिक, और जो जिसमें डोपिंग हो गया, जिसमें इंप्यूरिटी है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, क्लियर है? अब ये जो हम लोग डोपिंग करेंगे, या डोप क्या हुआ जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा,